Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We have already done this thing in the class. This is the everything is on the board. If you see the board, okay. So we have here. This is the home.php. This is the login.php, logout, and next page. There are 1, 2, 3, 4 pages in total. So first page is the login.php. Then this one, where what we have is simply we have a form. We have what? We have a form here. This is the PHP, and then on the bottom side is the form. This is the form, and the action we do is like the Basir was saying that we do it out in the same page. Okay, so I did it in the morning today in the same page. So this is login.php. That means the same page. The page name is login.php, right? The page name is here login.php. That way I'm saying if the user presses the submit button, it will go to the same page. Go to the and what I have in this page is nothing but two couple of input boxes with their labels. Okay, one for the username, one for the txt name and txt password, and a submit button and a reset button. Very simple, simplistic. And what we are doing here is after I am pressing the submit button, where will it go? That is the this thing action will does the form की जो action होती है वो बताएगी ना वो action is telling me to go to the same page, the page I am on, login.php, and the method is post. That means whatever is in the text boxes that will go into the dollar underscore post associative array, right? We know these things. Now when you press it in the beginning, when you open this page, this code will open. The PHP will run first, because first is my PHP code, and after that is on the downside is the HTML code. The PHP will run first, and it will set into the variable name Junaid and the password 1235. But later on we have to get it from where? So after one day we have a cookies, and after that we will move on to the database. Only one lecture we have with this. Okay, that's a cookies. And after that we will move to the database. We start creating our database and getting things from the database. Okay. Now, right now I'm plugging directly the variables name and password in the variables, and then I'm saying if is set dollar post txt name and is set dollar post txt password. That means what I'm saying is if I give it a go, this is in P. Okay, P folder. Okay, see, this is the local host slash P slash login PHP, right? Yes, this is my this is what this page is all about. Login.php is all about. But I got a label name, and this is the name, and then password and the submit button. So whatever I put into the name, that is Junaid, for example, and password, if I put correct 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. When I press submit, what will happen? This whatever is in the txt name text box and txt password text box, that will go to the post associated array, right? And I am seeing कि अगर मैं first of all जब मैं यहाँ पे आया तब ये चीज तो सेट नहीं थी ना, मैंने सबमिट प्रेस नहीं किया था ना, तो उस वक्त ये कोड चलना ही नहीं चाहिए. दैट इज व्हाई आई हैव ए इफ ब्लॉक ऑन द टॉप कि क्या ये पोस्ट एसोसिएटिव एरे सेट है भी कि नहीं है, उसमें वो टेक्स्ट नेम और टेक्स्ट पोस्ट गया है कि नहीं है. पहली बार गया था क्या? नहीं गया था, तो ये इफ चलेगा ही नहीं, ये फॉल्स आएगा. तो ये सारा चीज जो इसी इफ के अंदर है, ये यहाँ पे इफ जो पहला इफ है ना यहाँ पे एंड होता है, इसका एल्स कुछ नहीं है. यानी कि कुछ मत कर, पीएचपी साइड कुछ मत कर, अगर डॉलर एसटीडी पोस्ट सेट नहीं है तो कुछ मत कर, सिंपली एचटीएमएल चला और दिखा उधर वो चीजें. तो पहली बार मुझे सिर्फ ये दिख रहा है ना, पहली बार मुझे सिर्फ दिख रहा है ये पीएचपी कोड, कुछ नहीं चला ना, डू यू अंडरस्टैंड? तो खाली मुझे दिखा है ये चीज, इसलिए मैंने पहला इसको लगाया यहाँ पे कि क्या एसोसिएटिव एरे जो मेरी पोस्ट वो सेट है कि नहीं है. सबमिट आपने किया ही नहीं, आपने सबमिट या सबमिट आपने किया ही नहीं, तो ऐसे पोस्ट में तो कुछ होगा ही नहीं, तो उस वक्त कुछ करना ही नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो बिगनिंग ही है. लेकिन अगर आपने सबमिट किया हुआ है, अगर आपने आप तो मुझे सबमिट के बाद मैं सबमिट करूंगा तो किस पेज पे जाएगा? ये इसी पेज पे जाएगा. यस, व्हाई? क्योंकि एक्शन हमने बता रहा है गो टू द सेम पेज, लॉगिन डॉट
ठीक है ना। तो इसी पेज पे जब आएगा, अब आपकी एसोसिएटिव एरे जो है पोस्ट वो सेट होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब दोनों को तब हो जब उसका नाम भी और उसका, अगर आपने फॉर एग्जांपल नेम ही दिया और सबमिट किया, या पासवर्ड ही किया सबमिट किया, नेम नहीं दिया, उस सूरत में फिर भी कुछ नहीं चलेगा। तो उस सूरत में आप एक्चुअली एल्स इसका लगाओगे और बताओगे कि भाई साहब वो मिस है या ये मिस है, कि कौन सा मिस है आपको, है ना, कि भाई यूजर नेम दे दे पासवर्ड बोल गया, तो वो बताएगा आपको, इसके एल्स में चलेगा। फिर यहाँ पे इसके एल्स में वो कोड आप लिखेंगे कि आपको ये मिस हो गया है, वो मिस हो गया। अगर आपने दोनों दे दिए, यूजर नेम भी दे दिया और पासवर्ड भी, तब जाके ये इफ ब्लॉक जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उसमें इज सेट डॉलर पोस्ट टेक्स्ट नेम भी है और इज सेट पासवर्ड भी है, तो दोनों है। जब ये दोनों है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, वी स्टार्ट द सेशन, और हम पूछेंगे क्या मैंने सेशन में कुछ डाला है, तो पहली बार तो नहीं डाला, अभी तो नहीं डाला, वो कब डालना चाहिए, when should we start the session, when the username and password is correct, the username password is, so इसलिए ये if ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये इफ ब्लॉक यहां तक है, ये इफ ब्लॉक चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अभी सेशन सेट नहीं किया है। आपने सेशन स्टार्ट तो किया है, लेकिन सेशन वेरिएबल जो आपका है नेम, वो आपने सेट, वो आप इस एल्स में करोगे, कि जब अगर सेशन सेट नहीं है, उसका मतलब है कि पहली बार आया है वहां पे, ठीक है ना, तो इसको यहां पे जाना चाहिए, इस एल्स के ऊपर, यहाँ पे इस एल्स पे जाना चाहिए, इस इसका एल्स ये है। जहां पे मैं देख रहा हूं क्या जो पोस्ट एसोसिएटिव एरे है उसमें जो टीएक्सटी नेम था, क्या वो इसके बराबर है, जुनैद के बराबर है, और पासवर्ड जो है 12345, यहां पर जो डॉलर पोस्ट टीएक्सटी पासवर्ड है, क्या वो इस डॉलर पासवर्ड के बराबर है, या क्या यूजर नेम के बराबर यूजर नेम और पासवर्ड के बराबर पासवर्ड है, कि अगर है तो मैं क्या करूंगा काम, यहाँ पे दो काम करूंगा मैं। एक काम मैं यहाँ पे करूंगा कि सेशन नेम में मैं डालूंगा नेम, यानी कि मैंने एसोसिएटिव एरे सेशन क्रिएट की, उसमें मैंने क्या डाला, ये वही नेम है जो यहाँ पर, ठीक है ना, तो डाला मैंने। लेकिन कब कब डलेगा, जब लॉगिन क्रेडेंशियल्स करेक्ट थे, है ना। और मैंने एक और वेरिएबल खड़ा किया, सेशन टाइम, डॉलर सेशन का एक की वैल्यू क्या होता है, टाइम मींस करंट टाइम, उस वक्त जो टाइम होगा वो उसमें जाए। मे बी आप चाहते हैं कि आधे घंटे के बाद सेशन को डिस्ट्रॉय करें, है ना, तो उस सूरत में मैं टाइम को भी रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है ना। तो उसके बाद मुझे जाना चाहिए कि तरफ होम पेज पे, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट, इफ यू गो टू द, अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड ठीक नहीं दिया तो क्या करना चाहिए, तो अलर्ट करना चाहिए रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, और login.php जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी पेज पे है ऑलरेडी, तो उसी पेज पे है ना, या आप कह भी सकते हो कि लोकेशन login.php, ताकि वो रिफ्रेश करें सब चीजों, ओके। हो सकता है कि आप होम के ऊपर कहां से आए हो, दूसरे पेज से, कहां से आए हो, यानी कि आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट है उसमें पेजेस बने हुए हैं, वेबसाइट में पेजेस, अब लॉगिन ठीक हो गया, अब अंदर घूम रहे हो पेजेस में, अब आप जा रहे हो स्टूडेंट पेज पे, फैकल्टी पेज पे, लाइब्रेरी पेज पे जा रहे हो, फिर वापस होम पे आए, सेशन आते सेट घूम, ठीक है। हम सेशन में क्या कर रहे हैं, सेशन एक एरे है, एसोसिएटिव एरे, ठीक है। अगर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ठीक है तो उसमें हम उसके नेम में यूजर का नेम डाल रहे हैं, फिर हम हर पेज पे ये देखते हैं कि ईशा सेट गुमुत के नागरिक सेट गुमुत छु दैट मींस गो ना हम जो लॉगिन ठीक करो तेली दिन में एक्सेस कर, तेली दिन में आई विल गिव एक्सेस ओनली अगर लॉगिन और पासवर्ड लॉगिन में ठीक था और उसके बिना पे इसने सेशन वेरिएबल नेम सेट किया था। अब मैं हर पेज पे सेशन वेरिएबल चेक करूंगा कि ईशा सेट गुमुत के ना, वो किस सूरत में सेट होगा, जब लॉगिन और पासवर्ड करेक्ट है, तो मुझे एक्सेस देनी चाहिए, है ना। अब मैं घूम रहा हूं अंदर पेजेस में और वापस मैं होम पे आ गया, बोला बस होम पेजेस पे नॉट ओनली और बस लॉगिन पेजेस पे या कुन पे आज बे इफ सेशन जो सेट गोमुत सेशन सेट वो सो ऐसे तेली यथ इफसनस इफ इज सेट सेशन नेम, है ना। मैं यहां पे चेक करूंगा कि
मैं यहाँ पे चेक करूंगा भाई साहब इसको टाइम कितना हुआ है, इसको जो मेरा टाइम अलॉटेड होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स कहूंगा, 10 सेकेंड्स, अगर मेरे पास 1 घंटा रहना है, कितना रहना है, जो करंट टाइम था, जो करंट टाइम था उससे 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, वो 3600, यानी कि मैं 1 घंटा देख रहा हूं, क्या 1 घंटा से ज्यादा तो नहीं है, जो इस वक्त सेशन का टाइम है वो 36, जो टाइम है आपका टाइम इस वक्त, जो जब आप ये इस पेज पे आए हो उस वक्त जो करंट टाइम है वो टाइम देगा, उसमें मैं माइनस करूंगा जो सेशन टाइम है इज ग्रेटर देन, हाँ अगर इनको मैं माइनस करूंगा, अगर वो निकला इससे ज्यादा, उसका मतलब है कि जो टाइम है वो 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो मेरे को सेशन को अनसेट करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए और लॉग इन पे जाना चाहिए वापस, है ना, वरना कहां जाओगे, वरना जाओ होम पेज। अगर आप किसी और वजह से लॉगिन पे आए हो और आप ऑलरेडी लॉगिन हो तो आप जाओगे होम पेज पे, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन हो, आप ऑलरेडी लॉगिन इन हो ना, आपको करने की जरूरत। तो कुल मिला के अगर आप इस पेज पे आए हो लॉगिन पेज पे, तो पहली बार अगर आप आए हो तो आपका पहले यूजर नेम पासवर्ड चेक होगा, अगर वो चेक होगा उससे आपसे सेशन सेट होगा और उस वक्त जो टाइम है वो सेशन वेरिएबल टाइम में जाएगा, ठीक है ना, और आप होम पेज चले जाओगे। वरना अगर यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो आपको बुलाया जाएगा भाई रॉन्ग क्रेडेंशियल्स है, और अगर आप किसी और सूरत में इस पेज पे आए हो और सेशन ऑलरेडी सेट था, ठीक है, तो आपको सिर्फ टाइम देखना है कि टाइम तो नहीं हुआ था लैप्स। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए 30 सेकंड्स रखता हूँ, ठीक है, हाफ ए मिनट रखता हूँ कि 30 मिनट से अगर 30 सेकंड से ज्यादा हो गया तो ये लॉग इन पेज पे जाना चाहिए और सेशन डिस्ट्रॉय होगा, वरना किधर जाएगा ये होम पेज मेरे पास है। अब होम पेज पे मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि सेशन जब भी चेक करना है तो सेशन स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, हर पेज। तो मैं देख रहा हूँ क्या वो सेशन नेम स्टार्ट है कि नहीं, क्योंकि हर पेज पे अब मैं चेक क्या करूंगा, सेशन सेट कि ना, अगर सेशन सेट चुकी है लॉग इन करूँ सही, हो सकता है ना ये ब्राउजर में यूआरएल पे गया है, वहां इसने डायरेक्ट लिखा है, जैसे मेरा यहाँ पे ब्राउजर है, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट गया हूँ पी पे, उसके बाद home.php में डायरेक्ट गया हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ home.php पे, लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रहा है, वापस कहाँ आ रहा है, लॉग इन पे, बिकॉज ऑफ दिस कोड, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कोड, क्योंकि सेशन में को सेटिंग मैं को लॉग इन की है, इसने ट्रिक की थी, इसने वहां से यूआरएल से लगाया home.php पे चले जाओ, ठीक है, लेकिन लॉगिन इसने बाईपास किया, लॉगिन क्या किया, जैसे आपकी वेबसाइट है उसमें लॉगिन है, अब उसमें बहुत सारे पेज हैं, एक यूजर ने देख लिया इस पेज का नाम यूआरएल ये है, वो डायरेक्ट वो यूआरएल लगाएगा, लॉगिन करेगा बाईपास। अगर आप ये कोड नहीं लिखोगे इस सेशन का कोड, तो वो आपको एक्सेस मिलेगी, लॉगिन के बगैर ही वो उधर चला जाएगा, है ना, बिकॉज हमारा जो सेशन है वो देखिएगा पहले सेशन का सेट गुमत कितना, सेशन सेट लॉगिन पेज करेगा, खाली कौन करेगा, किस बिना पे, अगर यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है, अगर यूजर नेम पासवर्ड यानी कि जो लॉगिन पेज मेरा है उसमें अगर यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट था इस कंपैरिजन से, तो उस सूरत में सेशन सेट हो रहा है ना, वरना कहीं और सेशन सेट नहीं हो रहा है। तो अगर आप home.php पे हो रहे हो, आप कह रहे हो इस सेट सेशन, अगर सेट सेशन नहीं है उसका मतलब क्या है, इसने होम पेज पे बाईपास लॉगिन कर बाईपास करके गया है, तो उस सूरत में इसका एल्स चलेगा, जहां बता रहे क्या करो, इसीलिए मैं जब यहां गया, आप यहां देखें मैंने यहां पे भाई साहब इसको कहा पी डॉट, यहां पे मैं कह रहा हूं होम डॉट, चूंकि सेशन सेट नहीं है ना, ये उसके एल्स में चला जा रहा है और वहां वो किधर ले जा रहा है इसको, तो एक्सेस करने नहीं दे रहा है, ये लॉगिन को बाईपास करने नहीं दे रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। वरना अगर आपने सेशन सेट किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं सेशन सेट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करेक्ट पासवर्ड दूंगा, अगर मैं पहले रॉन्ग पासवर्ड दूंगा वगैरह तो सबमिट करूंगा तो बोलेगा रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, है ना, बोल रहा है रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ओके, एंड गेटिंग बैक अस टू लॉगिन पेज। ये इसका एल्स चला, जो लॉगिन था इसका एल्स पार्ट चला कि जब आपको
ये सही नहीं था, नेम और टेक्स्ट पासवर्ड सही, तो सेशन सेट नहीं होगा, आप होम पे नहीं जाएंगे बल्कि एल्स चलेगा, जहां पे आप अलर्ट दोगे भाई रॉन्ग क्रेडेंशियल्स है, वो आपने जावास्क्रिप्ट चला दी यहाँ पे, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगा के इको के अंदर, और उसके बाद हेडर से आप कहाँ गए, आप वापस लॉगिन पे जाओ, है ना, तो आपको होम नहीं मिल रहा। अब अगर आप क्या कर रहे हो काम, आप सही कर रहे हो काम, आपने यूजर नेम सही दे दिया और पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे दिया और सबमिट किया, अब ये इस इफ में चला जाएगा, सेशन सेट होगा, टाइम सेट होगा, और कहां चला जाएगा, होम पे, home.php पे, है ना, यहाँ पे। सो इफ आई से सबमिट, सेशन सेट हो गया, वेलकम टू होम पेज एंड यूजर नेम इज जुनैद, ये बता रहा है हमें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हो गया ये, जब इसने यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट निकला, इसने सेशन सेट किया, टाइम भी सेट किया, और लोकेशन क्या आ गया, होम डॉट, अब ये होम डॉट पीएचपी पे ऊपर है, यहाँ पर है, और यहाँ पे ये देख रहा है पहले कि इफ इज सेट सेशन, हाँ सेट सेशन था, बिकॉज यूजर नेम, आप सेशन सेशन का नेम, सेशन में वेरिएबल एक की ईमेल लिखी थी ना, नेम वो सेट हुई थी, है ना, तो इसलिए आप पहले ये देखेगा कि कहीं टाइम एक, यहाँ पे एक ही सेकंड है खाली, ठीक है ना, सो मैं यहाँ पे क्या क्या रखूंगा, 30 रखूंगा, ठीक है, वरना ये भागेगा ना कंट्रोल एस, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वापस होम पे आ चुका है, क्यों, क्योंकि उसको टाइम हो गया था, ये वापस आ गया लॉगिन पे, ठीक है, यानी कि टाइम आउट हो गया, क्योंकि हमने टाइम कम रखा था ना इसको बहुत। अब यहाँ पे मैं रहा हूँ ग्रेटर देन 30, क्या रख रहा हूँ, 30 सेकंड, दैट मींस कम से कम 60 रखते हैं, 1 मिनट रखेंगे, लेट्स टेक 1 मिनट सेशन टाइम, अदरवाइज इट विल बी टू, यू नो, हम बात ही करेंगे तो ये लॉग इन हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी रखेंगे कितना, 60, कंट्रोल एस, और नेक्स्ट पेज पे शायद मैंने काम किया नहीं किया है, 60 कंट्रोल एस, लॉग आउट पे करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है ना, बात में आ रही है। अब तो ये लॉग आउट हो गया, दैट मीन्स कि आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था, है ना, तो यहाँ पे मैं करेक्ट दूंगा अब जुनैद, और यहाँ पे करेक्ट दूंगा 1 2 3 4 5 एंड सबमिट, इट इज गोइंग टू द होम पेज, इज गोइंग टू व्हाट, क्यों गया होम पेज पे, क्योंकि इसका जो सेशन था वो सेट था, लॉगिन ने सेट किया था ना सेशन, दैट वाज करेक्ट, सो इसने टाइम पहले देखा कहीं ग्रेटर देन 60 है कि नहीं है, तो अभी 60 सेकंड तो नहीं हुए ना, 1 मिनट अभी नहीं हुआ है, तो इसने ये चीज नहीं की, इसने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि इसने एल्स में क्या किया, वेलकम टू, और यूजर नेम कहां से लाया, वो जुनैद, उसी सेशन नेम से जो मैंने लॉगिन पेज पे सेट किया था, जो मैंने लॉगिन पेज पे उसी लॉगिन पेज जो सेट किया था नेम, उसी को दे दिया इसने, जी ठीक है जी। और दो बटन्स हमने खड़े किए यहाँ पे, इको में एंकर टैग href नेक्स्ट पेज डॉट php, और इनसाइड में लिखा है इसको इनपुट टाइप्स गुड बटन, वैल्यूज गुड व्हाटएवर, और दूसरा जो लॉग आउट पे लेगा उसमें भी क्रिएट किया एंकर टैग में, और अंदर क्या बनाया, बटन, परसों हम डिस्कस कर चुके ना, इनपुट टाइप्स गुड बटन, वैल्यूज गुड लॉग आउट, तो ये दो पेजेस हैं। अगर ये चीज नहीं होती तो ये वापस कहाँ लेती, अगर सेशन सेट नहीं होता तो ये दिखाता ही नहीं वेलकम पेज, ये होम पेज, ये कहाँ ले जाता है, ये हमें ले जाता लॉगिन पे, ठीक है कि नहीं। अब हम जब जो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये फिर से ले रहा हूँ लॉगिन पे, क्यों, क्योंकि 1 मिनट हो गया, हाँ राइट, ये डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन पेज के ओपन पे जब रिफ्रेश करोगे या दूसरे पेज पे जाओगे खुद नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पेज पर है 1 2 3 4 5 सबमिट, इस पेज पर हम हैं अभी, अगर इस पेज को ऐसे ही रखेंगे 1 मिनट तक, उसके बाद ये लॉग आउट नहीं होगा, क्योंकि जब हम रिफ्रेश नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि ना इट इज ऑटोमेटिक हो, फिर इसको इवेंट ट्रिगर करना है, क्या करना है, तो इसको जावास्क्रिप्ट में ये डालना है, ठीक है, किसी इवेंट, फिर इवेंट हो जाएगा इसमें, हाँ फिर तो हो जाएगा, जब आपने कुछ किया किसी और पेज को लोड किया, रिफ्रेश आपने किया या कुछ, फिर तो वो कोड चलेगा ना, ये स्टे रहेगा वहां पे, वंस इट्स, पहली बार जब ये आया ना,
इसने उस वक्त चेक किया कि ये 60 सेकंड से ज्यादा था या नहीं, पहली बार जब ये हो गया पेज, ठीक है। उसके बाद तो हम चेक नहीं कर रहे ना। अब हम अगर इस पेज पे हैं 1 घंटा भी, इस पेज पे मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ, लेकिन जो ही हम किसी और पेज पे नेविगेशन करेंगे वहां पे वो इफ ब्लॉक करेगा ना चेक पहले। हाँ, मतलब 1 मिनट तो हो गया, कम से कम हो गया ना। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये नेक्स्ट पेज पे गया, नेक्स्ट पेज पे ये इफ ब्लॉक चल गया। जी जी बोले। हाँ, इट डजंट मैटर, व्हाई डजंट मैटर, लेट्स सी। जब हम ये चेक कर रहे हैं ना, ये टाइम ग्रेटर देन 60 है कि नहीं, वो तब कर रहे हैं जब पेज लोड हुआ पहली बार जब ये कोड चला ना, उस वक्त हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसी पेज पे हैं, अभी चेक तो नहीं हो रहा ना, इट्स नॉट डिस्ट्रॉय। अगर आप चाहते हो ना जीना ऑटोमेटिकली हो, तो फिर इवेंट इवेंट एक लगाना है, माउस स्क्रॉल कुछ भी, या आइडल टाइम पे भी कोई भी इवेंट लगा सकते हैं जो कि रन करेगा, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद रन करेगा कोई, ठीक है। कंटिन्यूसली करेगा ना वो चेक, इमर्ज को मतलब आप इमर्ज 60 सेकंड में गए, 60 सेकंड में गए, 1 मिनट पर हो गया, 1 मिनट में हो गया, ठीक है। अब हम 1 मिनट नहीं देंगे, कभी 1 दिन देंगे ना, तो 1 दिन में कितने सेकंड्स है, इनटू 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 से फॉर एग्जांपल 12, दैट मींस 30 डेज, या कुछ जैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। बात में आ रही है, क्लियर ना, नॉट क्लियर, किसी पूछो। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, इस कोड से वो नहीं होगा, उसके लिए इवेंट ड्रिवन, हमें इवेंट को ट्रिगर करना है, क्योंकि इस ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, ये हम पहली बार चेक करते हैं जब पेज लोड हुआ, जब पेज लोड हुआ उस वक्त ये कोड चला, इसने देखा 60 सेकंड्स नहीं हुए हैं, इसने ये पेज दिखाया। अब मत चलेगा ये कोड फिर से, जब तक कि आप वापस इस पेज पे नहीं आओगे, रिफ्रेश करोगे या कुछ करोगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं नहीं कंटिन्यूअसली चेक करना चाहिए, तो एक इवेंट लगाओ जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर रिपोर्ट रखो, ठीक है, जो कि लिसन करेगा ना, यू कैन लिसन टू दिस व्हाट। हाँ, चाहे फॉर एग्जांपल आप लिसन कर रहे हो स्क्रॉल को, किसी भी चीज को, माउस डाउन को, किसी भी चीज को आप लिसन करोगे, उस पे ये डालो, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली फिर ये लॉगिन पेज पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैटिक रख रहे हो ऐसे पेज को, तो ये तो वैसे ही रहेगा ना। तो क्या किया हमने होम पे, हमने पहले देखा क्या सेशन नेम सेट है कि नहीं, ये कहां पे हमने किया था, हाँ, ये लॉग इन पे था जब लॉग इन करेक्ट था। उसके बाद हमने टाइम देखा, क्या ये जितना हम टाइम रखना चाहते हैं क्या उससे ग्रेटर तो नहीं है, अगर है तो उसको डिस्ट्रॉय करो और लॉग इन वापस जाओ, वरना आप दिखाओ उस पेज के अंदर क्या दिखाना चाहते हो। हम दिखाना चाहते हैं कि वेलकम टू होम पेज हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हमने देखा कौन यूजर कौन था, वो सेशन नेम के पास है ना, वही तो वेरिएबल सेट किया था हमने सेशन। और उसके बाद हमने दो एंकर टैग्स लगा दिया और उसके अंदर बटन रखे। एक का नाम रखा हमने क्या, हाँ, एक का नाम हमने रखा नेक्स्ट पेज और दूसरे का नाम रखा हमने लॉग आउट। और लॉग आउट पे जाएगा और नेक्स्ट पेज पे जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं है, अगर सेशन सेट नहीं है, तो कहाँ ले जाएगा आपको। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे भी पहले हम क्या देखेंगे, अगर सेशन सेट है कि नहीं। अगर सेशन सेट नहीं है, ये आपको लॉगिन करने नहीं देगा, और ये टाइम दिखेगा कि टाइम माइनस डॉलर सेशन, जो टाइम हमने नोट किया था उस वक्त, और जो करंट टाइम है उसको माइनस करेंगे, क्या वो ग्रेटर देन 60 जितना टाइम है कि नहीं। अगर है तो डिस्ट्रॉय करें, वरना आप नेक्स्ट पेज का डेटा दिखाएं जो दिखाना चाहते हैं वहां पे। हमने कहा दिस इज द नेक्स्ट पेज, ये कुछ कोई भी पेज हो सकता है आपके वेबसाइट का, और वहां पे हमने डॉलर सेशन नेम दिखाया कौन सा यूजर है, और वहां पे होम पेज हमने वापस रखा, यहाँ पे होम बटन क्रिएट किया। कैसे, क्योंकि अगर हम HTML लगाना चाहते हैं PHP के अंदर, तो इको करके लगाओ, इको डबल कोट्स में, बाकी वही एंकर टैग href home.php, और एंकर टैग, ये जो एंकर टैग है इसका, और जो क्लोजिंग एंकर टैग है ये, उसके बीच में जो लिखोगे वो आएगा वहां पे लिख के, और उसके बीच में मैं जो कर रहा हूं, मैं एक बटन बना रहा हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप इज गुड बटन वैल्यू इज गुड, तो वहां पे होम लिख के आ जाएगा। उसको क्लिक करके किधर जाएगा, जो href बताएगा, होम डॉट। वरना अगर सेशन स्टार्ट नहीं है
लॉग इन पे चला जाए, यानी कि अगर आप नेक्स्ट पेज पे चला जाना चाहते हो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज डॉट पीएचपी, ये जाने नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसका एल्स चलेगा, क्योंकि सेशन सेट ये एल्स पे चलेगा, ठीक है ना। वरना अगर हम लॉगिन में करेक्ट लॉगिन करेंगे यहाँ पे और पासवर्ड देंगे हम 1 2 करेक्ट पासवर्ड देंगे, सबमिट करेंगे तो होम पे जा रहा है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज जा रहा है आराम से, ठीक है ना। वापस होम पे जाएंगे तो किधर जाएगा, इधर। इस पे जाएंगे, देखिए ये जा रहा है, अभी काम कर रहा है, लेकिन जो ही 1 मिनट होगा क्या होगा, तो ये खुद कहां पे जाएगा फिर, तो अभी 1 मिनट नहीं हो रहा, तो अभी काम कर रहे हैं, अभी हम घुस रहे हैं ना फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, जितने भी हमारे पास पेजेस होंगे उधर जा रहा है आराम से, ठीक है। तो जो ही इसका क्या होगा, 1 मिनट ज्यादा होगा। अब पहले जब मैंने लॉगिन करेक्ट किया था उस वक्त मैंने दो चीजें सेशन में डाली थी, सेशन इज द एसोसिएटिव एरे एंड इट इज स्टोर्ड इन वेयर, सर्वर साइड, कुकी इज स्टोर्ड इन द क्लाइंट साइड, सर्वर साइड स्टोर होता है, इसमें हम पासवर्ड वगैरह इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या अभी भी 1 मिनट नहीं हो रहा है, ऐसा तो ध्यान किया। एनीवेज, तो दो चीजें मैंने क्या क्या रखा, टाइम और नहीं, टाइम में क्या, टाइम फंक्शन जो है वो क्या देगी, करंट टाइम। तो उस वक्त जब हम देखेंगे, फिर देखो अब ये नहीं मान रहा है क्योंकि इसका टाइम आउट हो गया, अब ये लॉगिन पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो अभी तक तो करने दे रहा था जब तक ये टाइम था, तो 1 मिनट ज्यादा हो गया, जितना हमने रखा था 1 मिनट, तो ये लॉगिन पे आ गया। वरना अगर आप करेक्ट नेम देते हो, आप करेक्ट ही दे रहे हो 1 2 3 4 5 और सबमिट कर रहे हो, और मैं यहाँ लॉग आउट पेज जाना चाहता हूँ किससे, तो तब भी ये लॉग आउट करेगा, क्योंकि लॉग आउट पेज में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सेशन, अगर सेशन स्टार्ट है, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले किसी भी पेज पे जाओगे पहले सेशन स्टार्ट करना है आपको, नेक्स्ट पेज पे गए आपको पहले सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर आप लॉग इन पे गए सेशन स्टार्ट करना है तो किसी भी पेज पे जाओगे सेशन पहले स्टार्ट करो, फिर चेक करो क्या वो सेशन स्टार्ट है कि नहीं, यानी सेट है कि नहीं, कौन सा वेरिएबल, अगर वेरिएबल सेट है तो आप उसको डिस्ट्रॉय करो, और कहां जाओगे, अगर आप लॉग इन लॉग आउट पे गए डायरेक्ट, ठीक है, तो उसमें एल्स पार्ट चलेगा और वो कहां जा लीजिएगा, तो लॉग इन का, डज इट मेक सेंस। इसमें और कुकी में क्या फर्क है, कुकी जो आपकी होती है, ताकि से मगर लिफ्ट जाए जैसा श्रीनी इसी पे पढ़ रहा है ना, दैट विल बी टुमारो विद लिप्टन टी, क्योंकि कुकीज जो होती है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपने जैसे मैं परसों जूता ढूंढ रहा था, मैं जूता ढूंढ रहा था मिंत्रा पे, किस पे, अब एडिडास और प्यूमा का मैंने देखा था, अब प्यूमा का मेरे को आ गया दिमाग में, मुझे प्यूमा लेना है क्योंकि एडिडास मेरे पास ऑलरेडी है, प्यूमा मेरा कट गया, तो प्यूमा मुझे लेना है, यही जो मुझे लगा के, ठीक है। अब मैं जो ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं फेसबुक पे गया, कहाँ गया, लिसन लिसन टू मी, अब मैं गया फेसबुक पे, कहाँ गया, मैं मिंत्रा पे ढूंढ रहा हूँ अपना शू, किसमें, अब मैं गया फेसबुक पे, मैंने वहां पे डाले इसमें ना बैग में एक दो शू, अब मैं गया फेसबुक पे और फेसबुक की एड मुझे वही शू दिखा रही है, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स बिकॉज ऑफ कुकी, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इज कि जब आप मिंत्रा पे गए, इसी तरीके से जैसे हमारे पास ये है कौन, सेशन है, जिस तरह हमारे पास गेट है, पोस्ट है, वो भी एसोसिएटिव एरे है कुकी, एंड कुकी इज प्लेस्ड इनसाइड योर क्लाइंट साइड, ओके, क्लाइंट साइड स्टोर होती है, ओके, उसको हम देख भी सकते हैं सीधे कंप्यूटर से कहां पर है, तो सेशन को नहीं देख सकते क्योंकि वो कहां पर है, सर्वर साइड, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप मिंत्रा पे गए, आपने अपने प्रोडक्ट्स देखे, वो बंदा देखता है कि इस यूजर नेम के ये प्रोडक्ट्स है, वो उसकी कुकीज बनाता है, कुकी में वो स्टोर करता है वो वेरिएबल्स, वो चीजें, ठीक है। अब जब आप फेसबुक पे जाते हो या किसी और पे जाते हो, तो फेसबुक को तो एड्स होते हैं ना, उसके लिए एड्स होते हैं वहां पे, वो एड कहां से लेता है, इन्हीं कुकी से, वो इन्हीं कुकी से देखता है कि इसकी प्रेफरेंसेस क्या थी, मिंत्रा वाली या अमेजोन वाली या फ्लिपकार्ट वाली, तो वो मिंत्रा के एड में आपकी वही चीजें डालता है जो आपने वहां देखी, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, बहुत बार जो होता है आप भूल जाते हो, तो ये तो बिजनेस टैक्टिक्स भी हैं, क्योंकि आपने आपने देखा, आपने बैग में डाला, आप भूल गए, तो वहां फेसबुक में आया हो
लिखो जी, ठीक है। तो तशिमाजीर नाम है हम, या कभी कभार खुद भी भूल जाता है इंसान, तो फिर वो भी होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम बिजनेस टैक्टिक्स है, आपको अगर खरीदना भी नहीं है, उतराना नहीं है ना, फिर आप किधर भी जाओगे, गूगल खोला, उधर ऐड आ जाएगा वही जूता। क्यों, वो कहां से ले, कहां से रहा है, डजंट मेक सेंस। लेकिन कुकी जो आपकी है वो क्लाइंट साइड है, तो उसमें पासवर्ड नहीं डालने का। हम डाल सकते हैं ऐसे ही, हम पासवर्ड के लिए भी कर सकेंगे, लेकिन अगर पासवर्ड में डालेगा तो वो कोई भी बंदा उसमें आपका पासवर्ड चोरी कर सकता है। तो उसमें वेबसाइट का पासवर्ड नहीं डालने का। वो कहाँ डालने का, we have to do it in a server side in a safe associated array, that is the $_ ठीक है जी, समझ में आ गया। ये अभी करने का है कंप्यूटर पे।